जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। रहाओ मीना फकर फाक्यो अर काट्यो, रांद कियो बहु मानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसर्यो पानी। आपन बापै नाही किसी को, आवन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाड़ी, अब एक आस्यों कहिया। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हूँ सहिया। कह रविदास भगत एक बाड़ी, अब एक आस्यों कहिया। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हूँ सहिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर अते तखत दे मार्ग बाणी होए। सर्व साझी बाता दे प्रतीक शब्द गुरु, दसां ही पातशाहियां दी जोत धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही पहली, पातशाही छेवीं महान पवित्र इतिहासक स्थान ते विराजमान और यात्रा कर रही बहुत ही मानयोग गुरु स्वरूप गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, वडभागे हो जो अमृत वेले की सांभ संभाल करदियां होया गुरु चरना विच बराज के आप जी ने गुरमुख प्यारियां तो आसार दे शब्द कीर्तन श्रवण करके लाए प्राप्त कीते हैं।
ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਆਗਿਆ ਦੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। बाबा जी परमात्मा नूं ज़्यादातर माधव माधव माधवे इन्हां शब्दां नाल मुखातब हुंदे ने। ये उन्हां दा बड़ा प्यारा पैट शब्द है माधव। तो आप जी कहते ने, हे माधो जानत हो जैसी तैसी, तेरे भगत जिहो जिहा प्यार तेरे नाल करदे हन वो तू जानना। भाव वो तेथों लुकिया नहीं रह सकता। और जदों असीं तेरे नाल इतना प्यार करने आ, अब कहा करोगे ऐसी, कि हुण तुसी साडे नाल ये करोगे भी सानू मोह तो नहीं बचाओगे? नहीं, तुसी सानू मोह तो जरूर बचाओगे। अजिही प्रीत दे हुंदियां तू जरूर उन्हां नू मोह तो बचाई रखदा है जिहड़े तेरे सेवक तेरे नाल दिली प्रीत करदे। सारा शब्द प्रीत की व्याख्या करता है। संगत जी आम तौर पर असी वेख्या है कि संसार के अंदर जिहड़ी प्रीत है कई बार तो एक पासड़ होती है, दवली नहीं होती। और कदी कदी इस तरह भी वेखण विच आया भी प्रीत किसी स्वार्थ के तल के उत्ते खड़ी होती है। स्वार्थ पूरा हो जाता है, प्रीत टुट जाती है। वाहिद इको ही प्रीत है दुनिया में जिहड़ी स्वार्थ नहीं, वो है परमात्मा की प्रीत। सानू समझाने लई ना
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਦੀਪਕ ਭੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਕਰ ਦੀਪਕੈ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਿਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਪਤੰਗੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਲਵ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਵ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ। ਭਲਿਆ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਸਣ ਦਾ 100 ਹੀ ਲੱਗਦਾ, 100 ਚ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਤੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਗਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਵਾਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੋ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਾਂਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਾਣੀ ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਹਰਜਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਵਫਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੇਵਫਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੋ ਪਾਸੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, रहत चहु दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै। नौवें पातशाह कहते प्यार इस तरह का है जिवें सुरमे का अख नाल। सुरमे का संगत जी अख नाल किवें दा प्यार हुंदा है? अख च सुरमा पाइए ना, अख की सुंदरता नूं चार चंद ला दिंदा है।
ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਵਾਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤੰਗਾ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੀਪਕ ਪੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਕਰ, ਦੀਪ ਕੈ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਲੈ ਜਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਦੀ। ਅਲ ਚਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਸੰਪੁਟ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਅਲ ਭੌਰਾ, ਚੱਲ ਆਵਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮੇਟਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਫਸ਼ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ, ਭੌਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭੌਰੇ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਲ ਨੇ ਤੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਯਾਰੋ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਉਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਜੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਛਰਤ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕਤ ਗਹਿ ਡਾਰ। ਝੂਰ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਛੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੈਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
दुखदाई प्रीत की प्रतीत कह मरै भावें मर जाण ना टरै टलदे नहीं गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों बसार है। सिखा तेरी ते प्रीत सुखदाई है, तेरी ते प्रीत एक पासड़ नहीं। तू ते जिथे भी किते घर बाहर देश विदेश लोक प्रलोक ओनू पुकारे वो हाजिर हो जाता है, क्योंकि उन्हें लिखती जमानत देती है जय जय काज कीरत सेवक की तहां तहां उठ धावे सेवक को निकटी होए दिखावे। अपने सेवक की हिफाजत करता है। तेरी प्रीत दुखदाई ने तू गुरु वाल थोड़ा जिहा तुरे ते गुरु कई हजार गुणा लख गुणा करोड़ गुणा अगलवांडी तेनू लैण वास्ते हुंदा। ये फिजिकली नहीं सूक्ष्म। तू थोड़ा जिहा अंदरों उद्यम करे ते गुरु तेनू बहुत सारा उद्यम बख्श देता भी भाई तुर इस पासे। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तो तेरी प्रीत ते सुखदाई है, प्रीत ते दुखदाई नहीं। इस करके भाई तू ये प्रीत क्यों तोड़ना। संगत जी तुसी ते प्रीत वाले हो तां सारे चौकड़ियां मार के अपने इष्ट गुरदेव के चरणों में रोज बैठते हो। भाई तुहाडे चरणों में नमस्कार है, तुहाडी बड़ी बहादरी है। पर बहुत सारे लोग तुहानू इस तरह के भी मिल जाएंगे जिन्हां दी कोई प्रीत नहीं गुरु नाल। तुसी इत्थे संगत विच जुड़न की गल छड्डो, घरां विच प्रोग्राम हुंदे ने ना, घरां विच ते सद्दा हुंदा ते चलना जी। हुण चलना क्यों है? संत बनने वास्ते थोड़ा जाना है भी उत्थे पाठ सुनना है, कीर्तन सुनना है, कथा सुननी है ना। रब रब उत्थे जाना है भी अज असीं किसे दे जावांगे ते कल नूं साडे अल भी कोई आवेगा, नहीं तो लोकां ने आउणा ही कोई नहीं। उदन कल्ले ही बैठे रहांगे। फिर घड़ी अल वेंदा है, कई बार पाठी भोग लेट कर देंदे ने, चलने आ। फिर सुआणी कहती है जी हुण तो बड़ा टाइम हो गया है, 10 बजे का टाइम उन्हें लिखिया, हुण तो 10:30 हो गए ने। वो तू फिक्र ना कर, तू मगरों 3 जने फिर साज सूज चुक के आ जाते नहीं, वो भी लगे रहते ने घंटा। उन्हें फिर अद्धा घंटा ठहर के आख्या जी हुण तो चलो। वो कहता फिक्र क्यों करनी, एक कला भी आउंदा ही मैला जिहा परना पा के। फिर लत्तां खिंचदा धुंदा उत्थे अपड़दा है। फिर बाहर दूर दूर तक गड्डियां लगियां ने, अंदरों आवाज आ रही हुंदी है की प्रोग्राम है, किन्ना कु टाइम अजे लगेगा जी, घंटा। वो तेरा भला हो जाए तो फस गए, बहना पएगा, सुनना पएगा। फिर जेड़ा पार्किंग च काबू आ जाए वो नाल ही गल्लां लग पैंदा भी चल इत्थे टाइम पास करने आ। अगों फिर साडा यब है भी अगों असीं नित शुक रखिया हुंदा है भी पहलां ये छको ते फिर अंदर जाण देना है। वो फिर अंदर जाण वाला ते काम फिनिश ही हुंदा है। ये साडा हाल है। ये सानू ध्यान देने की लोड़ है। मन मार के संगत जी मैं एको ही बेनती करना हुंदा, असीं तुसीं सारे स्कूलों चों हो के ही आए हैं, जां पुत्रां नूं स्कूलों में भेजते रहे हैं, जां पोतरियां नूं भेजने हैं। स्कूल की वैन में कोई बच्चा खिड़खड़ा के हस के थोड़ा चढ़ता है, रोंदा ही चढ़ता है, मन नहीं करता पढ़न नूं। पर तुहानूं पता है भी ये ब्राइट फ्यूचर लिए पढ़ाई जरूरी है। तुसीं तुन देंदे हो वैन दे विच ते दरवाजा ला के छाती ते पत्थर रख के पिछा मोड़ आउंदे हो, उहनूं रोंदे नूं वेखिया नहीं जाता, पर बर्दाश्त कर लैंदे आ। जे ना घल्लांगे ते बनेगा की। जदों संगत की गल आउंदी है, संगत जी ये भी स्कूल है, इत्थे भी मन मार के बैठना पैंदा है। रोज दिलचस्प गल्लां कथा च नहीं हुंदियां, कदी कदी झिड़कां भी हुंदियां ने। उत्थे मन नूं समझाना है, जे गुर झिड़का है तां मीठा लग है। कदी कदी उचाटपन भी होवेगा, पर जेड़े मन मार के लगे रहणगे लगे रहणगे लगे रहणगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पालिश हो जाएंगे, नेम बन जाएगा। फिर उस नेम दे विचों प्रेम प्रगट हो जाएगा। जदों प्रेम प्रगट हो गया
फिर ये कहेगा साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पर ये नेम बनाना पवेगा। तुसी ते सारे नेम वाले बैठे हो, गुरु किरपा करे जिन्हां दा नहीं बनया उन्हां दा भी बन जावे। सो भगत रविदास साहब महाराज कहते ने माधवे जानत हो जैसी तैसी, हे माधो तेनू पता ही है साडी प्रीत तेरे नाल किस तरह दी है। ते जदों साडी तेरे नाल इस तरह दी हुण प्रीत बन गई है, डाढा प्यार बन गया है, ते की हुण तू साडा मोह दूर नहीं करेगा। अब कहा करोगे ऐसी, की हुण साडे नाल तू ये करेगा भी साडा मोह बनया रहेगा? नहीं नहीं, तू साडे मोह नूं खत्म कर ही देगा। ये प्रीत किवें पाई जे रविदास जी? कहन लगे रब जी तेनू जप जप के ना असी तेरे नाल प्यार दे बंधन बना लैने। तू ते सानू मोह च फसाया सी। रब जी तुसी ते ठग हो, सानू बड़ी बुरी तरह तुसी ठग लिया सी। हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर कै वियोग कैसे जियो मेरी माई। तुसी ते ठग लिया सी सानू, ठग बूटी माया ला के, पर असी तेरा नाम जप जप के मोह दे बंधन तोड़ दिते ते प्यार दे बंधन तेरे नाल जोड़ ले। जो हम बांधे मोह फांस, तुसी सानू मोह दे विच फसाया। हम प्रेम बंधन तुम बांधे। और किस तरह का प्रेम है संगत जी? इहदे चों मनुख छुट नहीं सकता। हुण साइंस ने एक शब्द इजाद किया टैलीपैथी, उहनूं कहंदे ने टैलीपैथी। जिवें टैलीफोन, टैलीफैक्स, इस तरह टैलीपैथी। टैलीपैथी की है? थोड़ा जिहा सुर ते जोर दिया दे, क्योंकि साइंसदानां तो लोकी विग्यानियां तो प्रभावित ने, ज्ञानियां तो नहीं। इन्हां नूं ते आउंदा जांदा ही कुछ नहीं। टैलीपैथी कहंदी है भी तुसी किसी नूं समग्र एकाग्रता नाल याद करो, उहनूं महसूस होवेगा। इथों तक एक्सपैरीमेंट किए गए ने। रात नूं बंदा 10 वजे सुता होया है, और सैकंड परसन उहनूं समग्र एकाग्रता नाल याद कर रहा है, उहदी नींद टुट जाएगी। जदों श्री कृष्ण जी बिंद्रावन तो मथुरा है ना कंस नूं कृतार्थ करन लई, ते गोपियां उत्थे रह गईयां, तां कृष्ण जी ने आख्या भी सानू साडा जाना जरूरी है, ते तुसी इत्थे रहो, असी कंस नूं कृतार्थ करना है। कंस दा संघार करना सी, वो पापी सी। जदों गए ते गोपियां याद करन, और इस कदर याद करन भी उन्हां तो कुछ होवे ही ना। हुण ते इत्थों तक तुसी कदी कदी महसूस किया होवेगा भी जिस व्यक्ति नूं तुसी फोन करन दी सोच रहे हो, तुसी फोन नूं हत्थ पाउण दी सोच रहे हो, ते बैल वजदी तुसी देखदे हो जिन्हों तुसी करना चाहुंदे हो ओहदा फोन आ। पता क्यों हुंदा इस तरह? ये टैलीपैथी काम करदी है। असी जिहड़ी गल करने आ वो साडे कोल सैट है, उपकरण है, पर उपकरण तो बिना भी गल की जा सकती है। रिद्धि सिद्धि उसे नूं कहंदे। तुसी बिना उपकरण तो भी गल कर सकते हो। तुसी दूर बैठे दूर दा हाल जान सकते हो, पर सानू गुरु साहिबान ने उन्हां गल्लां तो रोकिया है। कोई 40 दिन की साधना है, कोई 21 दिन की साधना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं, पर सानू हुक्म है रिद्ध सिद्ध अवरा साध। फिर हंकार आ जाता है, फिर मनुख पूजा प्रतिष्ठा च लग जाता है, फिर चेले आ जाते हैं, ते फिर वो चेलियां विच बंदा उलझ जाता है, जिधर जाना है वो रह जाता है। सिख साखा बहुते किए केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो। फिर चित डेरा वड्डा करन विच चेले वधाण विच ही लग जाता है। इस करके इधर नहीं जाना। मैं अर्ज कर रहा सा टैलीपैथी याद करन एकाग्रता नाल ते डिस्टर्ब होण। उथों मथुरा तो श्री कृष्ण ने उदो नूं भेजिया। उदो बंदे का नाम भी उदो, उन्होंने तो जीना हराम किया पिया मेरा। जा जाके उन्होंने समझा भी मेरे वालों सुरत हटा के ना जगदीश वाल सुरत जोड़।
ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਗਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ 10-20 ਇੱਕ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੌਣ ਭਜੇ ਜਗਦੀਸ਼? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਣ ਜਪੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ ਔਰ ਨਾ ਭੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕਦੀ ਹੋਈ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਸਕਦੇ, ਪੈਂਤੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕੱਚੇ ਪਏ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੈਣਾ ਵਾਂਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਥੱਕਦੀ ਵੀ ਕੋਨੀ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਪੈਰ ਖਿਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਲੋਕ ਨਾ ਕਾਲੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਣਾ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਟਾ ਪੁੜ ਕੇ ਪਰਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਤਿਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤਿਥੀ, ਤਿਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਿਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਤਿਥੀ, ਤਿਥੀ ਮੈਨੇ ਤਰੀਕ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤਿਥੀ, ਅਗੇਤਰ ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਔਂਸੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਗ ਮਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾ ਰਸ ਗਾਉ ਰੇ, ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨ, ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਉ ਨਾ ਜਾਹੂ ਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ
ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਰੇ, ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਰੇ। ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। खैर, जो हम बांधे मोह फांस हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। राह वालियां पंक्तियां नूं दास ने पहला आप जी के सामने एक्सप्लेन कर दिता है। अगले बोल, रविदास जी तुसी कहते हो बई अब जानत हो माधवे जानत हो जैसी तैसी, तेनू पता ही है, तेनू पता ही है, रब नू कहंदे ने कि भी तेरे नाल साडा किस तरह का प्यार है, मैनू तो पता है, तू भी दस तेरा किवें दा मेरे नाल प्यार है। ते कह लगे सुनो, मीन पकर फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बो बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। रब जी मेरा तुहाडे नाल इस तरह का प्यार है जिवें मच्छी का पानी नाल प्यार होता है। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी मछली नीर। उत्थे जल कमले की गल भी की है गुरु नानक साहब ने उस अष्टपदी विच ना 3 4 5 6 7 उदाहरण दित्तियां। सूरज का चकवी का, चंद का, चकौर का, कवल का, सूरज नाल, इस तरह संगत जी मच्छी का, भौरे का, पतंगे का। हजूर ने एको अष्टपदी में 5 6 7 एग्जाम्पल दित्तियां ने, बड़ियां बाकमाल। पर मैं उधर ना जा क्योंकि बचन तो बहुत ने गुरु ग्रंथ साहब वक्त का भी तकाजा होता है। रब जी साडी तुहाडे नाल प्रीत इस तरह जिवें मच्छी की पानी नाल हुंदी है। पहला मच्छी नूं पकड़िया जाता है, फिर फांकिया जाता है, फिर काटिया जाता है, फिर रिंढिया जाता है, फिर दंदां की चक्की विच उहनूं पेस्ट बनाया जाता, फिर निकलिया जाता है, ते पानी की फिर भी मंग करी जाती है। मरण तो बाद भी पानी की प्रीत वो नहीं छड्डदी, असीं ते मर के भी तेरे नाल प्रीत करी जानी। खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। किसी वेले गोया नंद लाल ने क्या सी कलगियां वाले नूं, कलगियां वालिया एक किरपा करी, जदों मैं मर जा ना ते सिख रवायतां अनुसार मेरा अगन दाह करो ना, तेरे ते हुक्म विच ना सारा कुछ। जदों निरंकार दे हुक्म च भय विच पवन वह सद वाओ, ते तू भी निरंकार स्वरूप पाउण भी तेरे हवा च। जदों मेरा शरीर राख हो जाए ना कलगियां वालिया राख, ते उदों हवा नूं कमी है, हवा गोया दी खाक उठा और आनंदपुर साहब दे आले दुआले इनू खलार दे। मेरी खाक नूं हवा नूं क्यों होर किते ना लै जाए, लोकां कहना हरजाई गोया सारी उम्र कलगियां वाले दी चरण शरण च रहा, इहदी खाक लोकां दे दरां ते रुलदी फिरदी है। इन्नी को मेरे ते तरस करियो, मेरी खाक भी किसी होर दे दर ते ना जाए। ऐसा प्यार कलगियां वाले ना। कूचा है यार में बैठ नक्शे पा की तरह, कोई मिटा तो सके लेकिन उठा ना सके। कच्चे पै ते तुसी तुरो ना नंगे पैरी, तुहाडे पैर का निशान उहदे च पै जाएगा। पैड़ पद चिन्ह हिंदी च कहंदे। हुण उस पद चिन्ह नूं कोई कहे खग के लियाओ, नहीं लिया सकते। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिटा दे सकते हो। मैं तेरे दर ते इस तरह बह जा, कोई मैनू खत्म तो कर दे, पर मैनू कोई उठा के उतों तोड़ ना दे भी चल इतों दफा हो। ऐसी कृपा करो। कूचा यार, यार दी गली, बैठ किवें बैठा, नक्शे पां की तरह, जिवें पैर का नक्शा पै जाता मिट्टी ते, कोई मिटा तो सके लेकिन उठा ना सके। आपन बापै नहीं किसी को पावन को हर राजा। संगत जी बड़े लिहाज चलते ने, मूँह रखड़ियां कीतियां जांदियां ने, बंदा बंदा वेख्या जाता है, गरीबी अमीरी सब कुछ देखा जाता है, पर रब दे घर विच कुछ नहीं देखा जाता। एक तो वह गरीब नवाज है,
दूसरा, ਉਹਨੂੰ कोई भुख नहीं, वो किसी दे प्यो की मलकीयत नहीं। साडे इत्थे ना एक कानून है भी जिहड़ी दादे आ रही है ना, वो तुहाडे तो प्यो भी नहीं खो सकता। आप जी नूं ज्ञात होवे ते मुबारक है। मान लिया तुहाडे दादे की कोई प्रॉपर्टी है और तुहाडे दादे दे नां तो तुहाडे पिता दे नां ते ट्रांसफर हो गई है, तुहाडा पिता देंदा नहीं, तुसीं कोर्ट 'ਚ भी जाके लै सकदे। इहनूं कहंदे ने दादे वाली। जुडिशली कहती है भी तेरे प्यो ने तेनों दिती है तो तू क्यों नहीं देंदा अपने पुत्र नूं, तेनों देनी पैनी। पर तुसी आप खरीदी है, तुहाडा बेटा तुहाडे तो धिंगो जोरी लैनी चाहे, तुसी कहो जी मैं मेहनत करके खरीदी है, जिहड़ा मेरा आग्याकारी होवेगा उहनूं देवांगा, जिहड़ा दूजा उहनूं मैं बेदखल कर दिता, मैं नहीं देवांगा। तुसी रोक सकदे हो, पर दादे की प्रॉपर्टी नूं तुसी नहीं रोक सकदे। ये भी मर्द करदे। रब किसी की मलकीयत नहीं, ये किसी को भी मिल सकता। बस एको ही कंडीशन है भी हिरदे विच प्यार होना चाहिए। वो गरीब होवे भावें अमीर होवे, किसी भी मजहब का होवे, कोई फर्क नहीं पैंदा। एको ही कंडीशन है प्यार। आपन बापे ना ही किसी को, रब किसी के प्यो की मलकीयत नहीं। फिर की है? भावन को हर राजा। वो भावना देखता है संगत जी, भावना। जैसे तो अनेक रोगी आवत है, वैद ग्रह जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावे। जैसे राजा पास लोग आवत सेवा निमित्त जोई जाही जोग तैसी टहल बतावी। जैसे राजा पास जन अर्थी अनेक आवे, जोई जोई जाचे दे दे दुखन मिटावे। तैसे गुर चरण शरण आवत है अनेक सिख, जैसो जैसो भाओ तैसी कामना पुजावी। डॉक्टर एक है रोगी कई ने, जिवें दा रोग तिवें दी दवा। हुकूमत एक है जॉब दे इच्छा वाले कई ने, जिवें दी काबलियत है उवें दी जॉब है। राजा एक है दानी एक है, मंगते कई ने, जिवें दी लोड़ है उवें दा दान है। गुरु एक है सिख कई ने, जिवें दी भावना है उवें दा फल है। भावन को हर राजा, जिस तरह की तू भावना लैके आवेगा, जिदे अंदर भावना नूं प्रभु प्राप्त हो जाता है। प्यार नूं देखदा है, जिहड़ा भाव बिदर विच है वो दुर्योधन विच नहीं। ते श्री कृष्ण कहंदे ने गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। इसलिए कहते ने राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे। ऐसो भाव, मैं जिस तरह का प्यार बिदर का वेख्या ना, तेरे विच ते 1% का लखवां गुणा भी उस तरह का प्यार नहीं। खीरा बड़ियां ने तेरे घर, पदार्थ बड़े ने, प्यार कोई नहीं गा। ओदे घर पदार्थ को नहीं सन, रुखे मिसे सन, पर प्यार ठाठा मारदा सी। ते मैनू तो प्यार चाहिए, जिथों मैनू मिलिया मैं चला गया। मैनू भुख प्यार की लगती है, पदार्थों की तो भुख लगती को नहीं। आपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो। मोह पटल पर्दा, साडे सारियां दी अखां ते मोह दा पर्दा पिया होया। सब जगत व्याप्यो, सारा जगत नूं व्याप्या होया मोह। पर नाले भी लिखिया संगत जी, भगत नहीं संतापा। जिहड़े भगत ने ना, जिन्हां ने उन्होंने जप जप के उहदे नाल प्रेम पा लिया, नहीं संतापा, उन्हां नूं मोह दा संताप नहीं व्यापदा। मोह तो ਉਹ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ प्रभु नाल प्रेम करते हैं। और कैसा रोग है संगत जी, कहते ने बंदर बारे भी, जदों दा छोटा बच्चा मर जाए ना, मरे हुए नूं एक हथ नाल इसने छाती नाल ला के तुरया फिर, एक हथ नाल रुखां ते चढ़ना।
बड़ी तकलीफ है। फिर वो हौली हौली सड़ता, बदबू मारता, नहीं छड्डदी। आहिस्ता आहिस्ता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सड़ के समान निकलता है, वो खलड़ी भी हौली हौली डिस्ट्रॉयर हो जाती। अखीर ਵਿੱਚ एक ਵੱਡੀ हड्डी ਜਿਹੜੀ है पिछली वो बच जाती है। फिर उस हड्डी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ मरे हुए ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ, परवरिश करनी, पढ़ाना, विआह करने, होर प्रबंध करने ने गुरमत सानू कहती। पर निर्लेप जय हो के पकड़ ढिली करते जाना है, जिम्मेवारियां निभाते जाना है। क्योंकि जिन्नी पकड़ मजबूत होगी, छड्डन लग्या तकलीफ उन्नी ही ज्यादा होगी। भगतां नूं मोह नहीं व्यापदा, बाकी सारियां नूं मोह अपने गलबे विच लै लैंदा। संगत जी कह रविदास भगत एक बाढ़ी अब एक कास्यो कही है। रविदास साहब महाराज कहते ने, एक तेरी भगती अपने हिरदे विच इतनी दृढ़ कीती है, इतनी वधा लई है कि मैनू हुण किसे नाल ये गिला करन दी जरूरत नहीं कि जिस प्रयोजन लई मैं भगती करदा सां वो प्रयोजन ते मैनू अजे प्राप्त ही नहीं। भाव मैं मोह विचों निकलना चाहुंदा सां भगती करके, ते मोह विच ते मैं हुण भी फसिया नहीं, मैनू हुण कोई मोह नहीं। ये बाबा रविदास जी दे वचन ने। मैनू हुण कोई मोह नहीं। लोग मैनू चमार कहंदे ने। चमार वो हुंदे ने जिहड़े जुत्तियां गंढदे ने, पर हस के कहंदे ने कमाल दी गल है, मैं ते कदी जुत्ती नूं गंढिया ही नहीं। कहंदे तुसीं ते रोज चौक च गंढदे हो। कहंदे उन्हां नूं गंढना वा, शरीर भी तो एक जुत्ती हुई है, भी तो चमड़े की हुई है। लोग इनू गंढण च लगे फिरदे बई कदी मैनू बनाना है, कदी टेस्ट कराने ने, हाय मैं मर ना जा, मेरी जुत्ती टुट ना जाए। लोकी लगते ने इस आर पार च, मैं इस जुत्ती दे आर पार च कदी लगा ही नहीं गा। चमरटा गांठ ना जणई लोग गठावे पानी। लोग शरीर रूपी जुत्ती नूं बड़े गांडे तोपे लांदे ने। ऑपरेशन की है? गांडे तोपे ही है। गंढदे ने ना संगत जी, जिवें आर तोपे नाल शरीर जुत्ती गंढी जाती है, डॉक्टर भी तेनू गंढदे ने ना चीर फाड़ करके। मैं नहीं कदी गंढ तुप करवाई। चमरटा गांठ ना जणई, मैं कदी जुत्ती नहीं गंढवाई। लोग गठावे पणी, लोग भजे फिरदे ने वैदां कोल, लोग भजे फिरदे ने डाइटिशियन दे कोल सलाहां लैण वास्ते। मैं नहीं कदी परवाह की, वेखी जाएगी जो होवे। आर नहीं तोपो, नहीं रापी ठाव रोको। मेरे कोल मोह रूपी आर भी कोनी गी। वो अज खोब के उहदे धागा अड़ा के फिर पिछा खिंचदे ने ना। मेरे कोल ना वो आर है, ना धागा है, तोपा है, ना ही वो छिल्लण वाली रंबी है। शरीर का मोह का कोई भी समान नहीं। नहीं राबी ठाव रोपो। लोग गंठ खरा बगुचा जुत्ती कढ़ा रहे ने। जुत्ती की उम्र वध जाती है, पर जो इस जुत्ती नाल पंथ तय करना सी वो करते ही कोनी, खज्जल हो रहे। ना बाणी पढ़ते ने, ना नाम जपते ने, ना संगत चाहते ने, ना सेवा करते ने। इनू तोपे लवाण का की फायदा? इनू ते रिश्ट पुष्ट करना सी, ये तो कम लईए। संगत जी कई बार जिमींदार को ट्रैक्टर ना ना हो, किसी रिश्तेदार का लै आते हैं मंग के सीजन च। वो कहते भी सीजन साडा भी है, 2 दिनों काम निबेड़ लो। फिर वो पता की करता सियाणा किसान, वो 2 दिन फिर उन्होंने खड़न नहीं देता। एक जना चढ़ जाता है, उन्हें जंगल पानी जाना, इशनान करना है, रोटी पानी खाना, दूजे ने चढ़ जाना भी इन्हू दब के रखो 2 दिन, वापस भी करके आना है। ये मांगवा शरीर मिलिया, इनू जिन्ना वाह लांगे उन्ने चंगे रहांगे, तो जे इनू पोच पाच के खिलार छड्डिया तो फिर इहदा लाभ की है? फिर ते गंठ खरा बगूचा, खज्जल होया। हाँ बिन गंठ है जाए पहुंचा।
रविदास जपै राम नामा मोहे जप स्यो नाही कामा। हुण मैं ये नहीं कह सकता भी जिस मोह तो खलासी हासिल करने लई मैं नाम जपदा सा भगती करदा सा वो मोह हजे भी बनया नहीं। मेरिया मोह दियां तंदां टुट गईयां ने ते मेरे अंदर प्रभु का प्रेम पैदा हो गया है। ये भगत रविदास महाराज ने अज सानू सारियां नू साझा उपदेश बख्शिश किया है। संगत जी समा समाप्त है, सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। होईयां बेअंत भुलां गलतियां वास्ते हिमा दा जाचक हां। सो आओ अंत को फतेह की साथ करते हो। आज्ञा बख्शिश करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।